Hello students, 8th chapter up to exercise 8.2 we have done. Today we have to start exercise 8.3. Up to now we have seen what is proportion, ठीक है, और what is ratio. Now in this exercise we will see what are the types of proportion. ठीक है, तो there are two types of proportion, direct and inverse proportion. First is direct proportion or variation we can say, and second is inverse proportion. ठीक है, तो what is the meaning of direct proportion and inverse? Let's see. If the two quantities are changing simultaneously with each other, है ना, in the same order, simultaneously in the same order, if they are changing, then they are known as, then we will say that they are in direct proportion. What does it mean? In simple words, देखो, if one quantity we are increasing and its related quantity is also increasing, ठीक है, when we are increasing one quantity then its related quantity proportion में जो है ratio में that is also increasing, ठीक है, तो then we will say that they are in direct. Similarly, if we are in decreasing then also they are other quantity is decreasing. If they are going in same way then we will say they are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एग्जाम्पल देख लो, बिल्कुल सिंपल. लाइक यू नो वन पेंसिल, सपोज वन पेंसिल कॉस्ट 5 रुपीज़, वन पेंसिल कॉस्ट 5 रुपीज़, देन व्हाट विल कॉस्ट टू पेंसिल्स कॉस्ट 10 रुपीज़. तो देखो, क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स वी हैव इंक्रीज्ड, अमाउंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. वन पेंसिल 5 रुपीज़, टू पेंसिल 10 रुपीज़, थ्री पेंसिल 15 रुपीज़. तो इन दिस वे जैसे जैसे हम क्वांटिटी वी विल इंक्रीज, इन द सेम वे अमाउंट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्लियर. अब इन्वर्स प्रपोर्शन. इन्वर्स में क्या, इफ वी आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी, द क्वांटिटी रिलेटेड टू इट, द प्रपोर्शन, द क्वांटिटी विच इज इन प्रपोर्शन टू इट, दैट इज डिक्रीजिंग. मीन्स दे आर बिहेविंग इन अपोजिट मैनर. वन इज इंक्रीजिंग, अदर विल डिक्रीज रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट. इफ वन इज डिक्रीजिंग देन अदर विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इट. क्लियर. तो एग्जाम्पल देख लो, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ दिस. सपोज 10 men take 10 days to do a work. 10 persons, 10 men take 10 days to complete a work. If same work we will give to 5 men, then automatically they will take more time to complete the work. If 10 men are taking 10 days to complete the work, if we will give the same work to 5 men, then automatically, you know, we know it is the common sense, they will take more time to complete the work. Maybe double हो जाएगा, because half we have reduced the persons to half. 10 persons की जगह 5 person लेंगे, टाइम डबल हो जाएगा, 10 की जगह 20 लगने लगे. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स. नंबर ऑफ men we have decreased, but time taken by them to complete the work will increase. So this type of variation is called inverse variation. Clear बेटा, समझ आ गया. Now come to the exercise. Like first question देखो, observe the given proportion and then we have to tell direct or inverse and find the value of x also. तो see how we have to do. Like first sum देखो, 14:35 proportion 16 ratio x. प्रपोर्शन में गिवन है ना, दे आर रिटन इन द प्रपोर्शन. वी कैन सी इन दिस वे व्हेन नंबर्स आर रिटन, इट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन. एंड इफ दे आर इन प्रपोर्शन, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो देखो, वो हमने कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज 14 इंटू एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया 35 इंटू 16. तो एक्स की वैल्यू आ गई 40. सॉल्व, यू नो हाउ टू डू. एक्स की वैल्यू आ गई 40. तो नाउ देखो, फर्स्टली see in the statement, antecedents were given to. Antecedent I have told you also. What is the antecedent? First term in the ratio. तो देखो, first term in both ratios we know, firstly it was 14, now it is 16. Means it has increased. 14 से 16 होगी, increase होगी. And consequent दोनों के, firstly it was 35, now we have found its value and it is 40. So that is also increased. When we have increased the antecedent from 14 to 16, consequent has also increased from 35 to 40. तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्लियर. तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू. नंबर्स गिवन है प्रपोर्शन में,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वी विल डू करके, एंड x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, एंड आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x वी हैव टू चेक वेदर द प्रोपोर्शन इज ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स, विच काइंड इट इज़। क्लियर बेटा? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो वेयर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। नाउ इट इज़ गिवन दैट एक्स एंड वाई वेरिंग डायरेक्टली, तो सो वी हैव टू टेल द वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज हैं दैट वी हैव टू टेल। तो सी हाउ वी विल डू, वी कैन सी हेयर इफ सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वी आर सीइंग, देन देखो एक्स वैल्यू वन वैल्यू ऑफ एक्स इज मिसिंग, तो दैट वी विल लेट x1, एंड इन y देयर आर टू वैल्यूज मिसिंग, तो फर्स्ट वाली को क्या लिख लेंगे y1, सेकंड वाली को क्या लिख लेंगे y2। तो इन दिस वे वी हैव लेट द मिसिंग वैल्यूज, देखो हेयर यू कैन सी इन द टेबल x1 y1 y2, ठीक है, लेट कर लिया। नाउ देखो एज दे हैव गिवन के दे आर वेरिंग डायरेक्टली, तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट फॉर डायरेक्ट वेरिएशन क्रॉस मल्टीप्लाई विल ऑलवेज बी सेम। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होएगा भी, क्रॉस मल्टीप्लाई इज ऑलवेज इक्वल। तो वी इन द only one ratio is given which whose both values are known to us, which are 4 and 20. In other we can see every time one value is missing, like firstly देखो 7 के साथ y1 missing है, then 55 is x1 missing है, 17 के साथ y2 missing है, तो only one ratio is there which whose both terms are given to us, that are 4 and 20. So this ratio we have to use with all the three one by one, and as I have told you in direct proportion cross multiply we have to keep equal. So देखो here you can see firstly 4 by 20 को मैंने 7 by y1 के इक्वल रख दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 4 इंटू y1 इक्वल 7 इंटू 20 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होगी, फ्रॉम हेयर y1 वैल्यू वी कैन फाइंड, ठीक है, सॉल्व कर देंगे y1 की वैल्यू। तो इन दिस वे ऑल द मिसिंग वैल्यूज वी कैन टेल, ओनली वन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट डायरेक्ट in the direct proportion cross multiply will be equal, ठीक है जी। now come to question number 3, complete the table given below where x and y vary inversely। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली इट इज सेम, जस्ट नाउ चेंज किया है दैट एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। तो इनवर्सली में देखो व्हाट चेंज विल बी देयर, इन सेम वे देखो मिसिंग वैल्यूज आई हैव लेट वन वैल्यू ऑफ एक्स वाज मिसिंग, सो x1, टू वैल्यूज ऑफ y वर मिसिंग, सो फर्स्टली y1 हो गया, सेकंड वाली को y2 मान लिया। अगेन ओनली वन रेशियो इज गिवन हुज बोथ वैल्यूज आर नोन टू अस, 15 एंड 52, इन अदर्स इन एवरी केस वन वैल्यू इज मिसिंग। तो इन इनवर्स प्रोपोर्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स, देखो इन इनवर्स ऑन द प्लेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे की जो मल्टीप्लाई है, मतलब रेशियो की जो दोनों टर्म्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज सेम, ठीक है। तो लाइक वन रेशियो विच इज गिवन टू अस हुज ऑफ बोथ टर्म्स वी नो 15 एंड 52, देयर मल्टीप्लाई 15 एंड 52 की मल्टीप्लाई, इट्स मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू सेम वे इन अदर्स 13 इंटू y1, ठीक है, फिर 15 इंटू y 52 को क्या रख देंगे x1 इंटू 156। तो ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं करनी, अब एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट की अपने ही रेशियो के सेम रेशियो का एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट दैट विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर, एंड दैट वी हैव टू कीप इक्वल टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। क्लियर बेटा? तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.3। तो start doing your work, and if there is any problem then you can ask.